Good morning everyone. Myself Dinesh Mishra from Lakshmi Sarnolia Public School, Golabazar, Gorakhpur. Today I am going to discuss about the previous year question paper of class 10 science which is based on 2018. In the previous lecture we have already discussed about the previous year question paper which is based on class 10 science 2018. आज के इस वीडियो में हम 2018 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था जो क्लास 10 साइंस से रिलेटेड है, इसमें जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच रहे हैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट जूस लॉ ऑफ हीटिंग एंड सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द टू लैम्प्स, वन रेटेड 100 watt 220 volt and the other 60 watt 220 volt are connected in parallel to electric main supply. Find the current drawn by the two bulbs from the line if the supply voltage is 220 volt. So here is the first question is according to the Joule's law of heating. The heat produced in a wire is directly proportional to the heat produced in a wire is directly proportional to the square of the current. Directly proportional means if one quantity increase, then other quantity also increase with the same amount. So here is the heat is directly proportional to the square of the electric current, and second is the heat is directly proportional to the resistance. Means if the resistance is increasing, then heat is also increasing. And third point is the time. Heat is directly proportional to the time. Means if the time duration is increasing, then heat is also increasing. So here is the include from equation 1, 2 and 3. From the first equation, second and third, then H is directly proportional to the I square or T. अब यहाँ से जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन है इसको हम रिमूव करते हैं, तो H इक्वल टू K I स्क्वायर आर T. इफ द वैल्यू ऑफ K इज 1, अगर जो K इक्वल टू 1 रखते हैं, then H equal to I square RT. Second part is two lamps, one rated 100 watt and 220 volt and the other 60 watt 220 volt are connected in parallel to electric main supply. Find the current drawn by the two bulbs. The line in the supply voltage is 220 volt. So here is the two lamps, one rated 100 watt 220 volt. So first here is the power, then E equal to B into I. Means electric power is equal to potential difference and electric current. यहाँ पे जो पावर है वो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। तो क्वेश्चन में दिया गया कि जो 40 वाट है 100 वाट एंड वोल्टेज 220 वोल्ट एंड सेकंड द अदर 60 वाट 220 वोल्ट 60 वाट 220 volt are connected in parallel to electric main supply. Find the current drawn by two bulbs from the line. यहाँ पे आपको फर्स्ट करना है कि फर्स्ट पावर दिया गया है 100 वाट P1 100, that is the voltage 220 volt, voltage V 220 वोल्ट, पावर यहाँ पे कितना 60 P2
60 watt and voltage is 220। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है, तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं I इक्वल टू P इक्वल टू V बाई देन I इक्वल टू P बाई V। यहाँ पे I1 फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे पावर दिया है 100 वाट, देन 100 बाई 220। अब ये हो गया 0.2511 यानी 0.45 एम्पियर। नेक्स्ट यहाँ पे 60 वाट दिया गया है और ये वोल्टेज 220 वोल्ट करंट यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो करंट नेक्स्ट I2 इक्वल टू P2 बाई V और यहाँ से पावर कितना 60 वाट है, देन 60 बाई 220 311 देन 3 बाई 11। अब यहां से जो करंट होगा 3 बाई 11 एम्पियर और ये हो जाएगा 0.27 एम्पियर। नेक्स्ट व्हाट इज द टोटल करंट हियर, दैट टोटल करंट या नेट करंट इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 0.5 एम्पियर प्लस नेक्स्ट 0.27 एम्पियर 0.27 एम्पियर मीन्स 0.72 एम्पियर। यानी नेट करंट यहाँ पे जो नेट करंट होगा 100 वाट में 220 वोल्ट है और 60 वाट में 220। तो नेट करंट निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिविजुअल करंट फाइंड करते हैं और इंडिविजुअल करंट फाइंड करने के लिए जो पावर होगा, पावर और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट में जो रिलेशन होगा ये क्या होगा P इक्वल टू V टू I। यहां से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करेंगे, देन I1 इक्वल टू पावर बाय पोटेंशियल डिफरेंस और ये जो है 0.5 एम्पियर 100 वाट पे आएगा और 160 वाट के लिए जो इलेक्ट्रिक करंट होगा ये आ जाएगा 0.27। तो नेट करंट या टोटल करंट यहाँ पे जो होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट I1 प्लस I2 ये हम प्लस कर देते हैं, तो ये आपका जो नेट करंट आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया था, क्वेश्चन है लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इन द शेप ऑफ वायर डिपेंड्स। सेकंड पार्ट था why are metals good conductors of electricity whereas glass is a bad conductor of electricity, give reason। next why are alloy commonly used in electrical heating device, give reason। तो यहां से जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर in the shape of wire depends। तो यहां पे जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द length of the wire and inversely proportional to the area of cross section। Here is the resistance is inversely proportional to the area of cross section 1/8 and temperature, its temperature and the nature of the material। So here the four factor of the resistance which is depend, क्लियर है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की जो फोर फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट हो गया लेंथ ऑफ द वायर, दूसरा क्या हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एंड जो नेक्स्ट होगा
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। तो 4 फैक्टर होंगे जिसपे क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा ये डिपेंड करेगा। इसका नेक्स्ट पार्ट था कि व्हाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्लास इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिव रीजन। तो यहाँ बता रहा कि मेटल्स होता है, मेटल्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मूव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। और जो ग्लास होगा, ग्लास में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जहाँ पे ये मूव नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे कंडक्ट नहीं हो पाती है। तो ये इसका रीजन हो गया। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है व्हाई और एलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हेडिंग डिवाइस गिव रीजन। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 13 का, व्हाई आर एलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हेडिंग डिवाइस गिव रीजन। तो यहाँ पे जो इसका रीजन होगा कि इलेक्ट्रिकल जो हेडिंग डिवाइस होता है इसमें हम क्या करते हैं, कॉमनली यूज्ड एलॉय का करते हैं। तो एलॉय की जो रजिस्टिविटी होती है ये क्या होती है, हायर होती है देन प्योर मेटल। यहाँ पे जो है इसका जो टेम्परेचर एलॉय का इंक्रीज करने पे ये क्या होगा, ये बर्न नहीं होता है। इसीलिए जो हीटिंग डिवाइस होती हैं जैसे टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, एलॉय का यूज जनरली करते हैं प्योर मेटल से। तो इस वजह से यहाँ पे डिवाइस में हम एलॉय का करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी एलॉय की रजिस्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है देन प्योर मेटल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर O of a convex lens, focal length 20 cm. Draw a ray diagram to find the position and size of the image from mark optical center O. Principal focus on the diagram. Also find the approx ratio of size of image to size of the object. तो यहाँ पे बता दें जो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ आपको दिया गया है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ क्या होगा, इसकी साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो प्लस होगा। और इसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर of a convex lens of focal length 20 cm. Draw ray diagram to find the position and size of the image or form mark optical center and the principal focus of the diagram. Approx ratio of size image to the size of the object. तो ये इधर पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया गया है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है ये 30 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो साइन क्या हो गया, माइनस। अब यहाँ से हम जो फार्मूला होता है मिरर फार्मूला का अप्लाई करते हैं तो 1/L इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। नेक्स्ट 1/F 1/20 इक्वल टू 1/V plus 1/U. Object distance is the minus 30 centimeter, minus 30, then 1/20 equal to 1/V plus minus minus 1/30. इसको ट्रांसपोज करते हैं, then 1/V equal to 1/20 plus 1/30. अब यहाँ से 20 और 30 का जो LCM होता है इसको फाइंड कर लेते हैं। 60 माइनस देन 3 minus 2 1/60। अब ये क्लियर होगा कि V जो पोजीशन ऑफ द इमेज होगा 1/V इक्वल टू 1/60 देन V इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, यानी पोजीशन ऑफ द इमेज 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी HI/HO। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो होगा इसको हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं।
तो V by U, then height of image equal to height of the object 4 V का वैल्यू कितना हो गया 60 सेंटीमीटर एंड U कितना है -30, then height of image 8 सेंटीमीटर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जो हाइट ऑफ इमेज -8 सेंटीमीटर जो रे डायग्राम इसका यानी कि डायग्राम में रे का बनाना था, तो रे डायग्राम यहाँ पे 2f1 और f1 के बीच ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और ये बनेगा आपका जो ज्ञान 2f2। यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज इसकी साइन क्या आ रहा है तो -नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये बनेगा क्या इन्वर्टेड। यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो इमेज होगा ये क्या पता है बिहाइंड या अदर साइड ऑफ द लेंस एंड इसकी जो नेचर होगी ये क्या होगी इन्वर्टेड। तो ये था आपका जो है ये क्वेश्चन, इसमें हमने जो पोजीशन था इमेज का पोजीशन फाइंड किया V और हाइट ऑफ द इमेज -8 सेंटीमीटर। और इसका जो क्वेश्चन में दिया गया था कि ड्रॉ द रे डायग्राम, mark optical center, principal focus on the diagram, also find the approx ratio of size of image to size of the object। तो size of the image और size of the object का जो रेशियो हो गया क्या हो गया 4 और 8 का हो गया, 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट क्या 8 सेंटीमीटर। इसका जो रे डायग्राम होगा, रे डायग्राम यहाँ पे हम इनके बीच प्लेस करेंगे, f1 और 2f1 के बीच ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और यहाँ पे जो इमेज बनेगा ये कहाँ बनेगा 2f के पास और इमेज की साइज कितनी है 8 सेंटीमीटर और नेगेटिव साइड इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या हो रहा है इन्वर्टेड बन रहा है। तो ये था जो है आज का क्वेश्चन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।